Hello, good morning, students. Once again, I welcome you all on the online classes of the Discovery International School. Myself, Suraj Kumar, the mathematics faculty of this school. Now, I proceed with the next question of the 13.1 exercise, that is surface area and volume. 13.1 question number 8. In last video, I have already taught you up to the question number 7. One by one, every question I am dealing with you. And now the next question is 8th one. And what is the question? I'm going to read. Just you see on the board. First question, 8th question. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter, you have given a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter. And next line, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. The conical cavity, you can see the green area, this green area. This conical region is hollowed out from this solid cylinder of the same diameter and same height. The height of this cone is also 2.4. Now, find the surface area of this solid. You have remaining solids and you have to find the surface area of this solid. Wait a minute. Now, surface area of remaining part. So you have to go through the technical words. The first one is the wall of this cylinder. When you are going with the wall of this cylinder, then you must find out curved surface area of cylinder. You can touch the wall of the cylinder. That's why we took CSA of the cylinder plus the curved surface area, the wall of the conical portion. Wall of the conical portion The wall of the conical portion is CSA of cone. Next, now the bottom part of this cylinder is also solid. That's why we can touch that one also. So you will have to add pi r square. Now you are not going to add this top portion because this top portion is hollowed out. So we don't have this area. That's why we are not going to add this one. We will add the base of the cylinder, but not will add the top portion of this cylinder. Now put the formula of all three and the values. CSA of the cylinder is 2 pi r h plus CSA of the cone, that is pi r l. Next, the base area of the cylinder is pi r square. Now put the values. Pi r is here also, pi r is here also, pi r is here. So that's why pi r is common out. You have 2h here, l here, and 1 r is here. Put the values. Now our values are pi is 22 upon 7 r. The diameter is 1.4, so radius will be 0.7 centimeter. Bracket twice of height. Our height is 2.4 plus salient height. You don't have salient height. We will find the salient height this side. Salient height is under root h square plus r square. So L is h is 2.4 square plus r is 0.7 square. So 2.4 square is 5.76 and 0.7 square is 0.49. When you will add, wait a minute,
2.4 square is 5.76 and 0.7 is 0.49. When you add all these two, you will get 6.25. So the salient height is 2.5 centimeter. So salient height is 2.5 centimeter and radius is 0.7. When you calculate this one, you will get your answer. It is 0.1. When you multiply this, you will get 2.2. Now 2.4 into 2, it is 4.8 plus 2.5 plus 0.7. Now add all three. 7, 5, 12, 12 or 8, 20. 20, 0, carry 2, 2, 4, 4 or 4, 8. It is 8.0 multiplied by 2.2. Now, your answer is 17.6 centimeters square. It is the surface area of the remaining solid. The conical part, the wall of conical part, wall of the cylinder and base area of the cylinder. Conical part ये wall और ये इसका wall और ये base, इन तीनों का एरिया निकाला तो हमारा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट एरिया है। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन में जो जो रिक्वायरमेंट था उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सिलेंडर का हाइट 2.4 है, डायमीटर 1.4 है और उससे कॉनिकल कैविटी हॉलोड आउट किया गया, मीन्स काट के निकाल लिया गया। तो जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया निकालना था। तो दीवार हम टच कर सकते हैं सिलेंडर का, कोन का दीवार हम लोग हैंड इन करके इसमें डाल देख सकते हैं, और पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया, इन तीनों का एरिया निकाल के हमने ऐड कर दिया, वैल्यूज रख के सॉल्व कर दिया, हमारा रिमेनिंग पार्ट का सरफेस एरिया निकल गया। नाउ विल प्रोसीड विद लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1. Exercise 13.1, the last question of this exercise. Now, question number 9, the last one. The last question of this exercise. A wooden article was made by scooping out the hemisphere from each end of the cylinder. You have again given a cylinder. So draw the cylinder. ये हमने सिलेंडर का स्ट्रक्चर बना दिया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर इससे स्कूप आउट किया गया, मीन्स काट के निकाला गया दोनों एंड से, फ्रॉम एच एंड ऑफ द सॉलिड। इधर से भी एक हेमिस्फेरिकल पार्ट काट के निकाला गया और इस पोर्शन से भी हेमिस्फेरिकल पार्ट काट के निकाल लिया गया। नाउ क्वेश्चन इज, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर का जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ एंड द बेस रेडियस इज 3.5, और जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब आपके पास ये जो आर्टिकल नजर आ रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि क्या क्या पोर्शन हम टच कर सकते हैं। सबसे पहले CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इसके दीवार को हम लोग जब काट के निकाल दिया गया तो सॉलिड का ये पोर्शन, हम येलो वाला पोर्शन टच कर सकते हैं। सिमिलरली इधर से भी हम लोग टच कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा CSA लगेगा, वॉल ऑफ द हेमिस्फीयर इज CSA। तो ट्वाइस, और सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, total surface area of solid, then twice of the CSA of hemispherical end, CSA of hemispherical end, CSA इसका, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ऊपर से भी इसका काट के निकाला गया और डाउन साइड से भी निकाला गया, इसलिए दोनों एक का CSA निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस इनके दीवारों को भी हम टच कर सकते हैं, ये इनके दीवार वॉल ऑफ द सिलेंडर,
तो वॉल ऑफ द सिलेंडर मीन्स CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल। इन दोनों का एरिया निकाल के अगर हम ऐड करते हैं जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा आ जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA 2 पाई r स्क्वायर प्लस CSA of the cylinder, that is 2 pi RH. It is 4 pi r square plus 2 pi RH. 2 pi r is the same in both one, so 2 pi r हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे बच गया आपके पास 2r और यहाँ पे बच गया आपके पास only h. Put the values 222 upon 7, radius is 3.5, 2 into r is 3.5 plus height is 10 centimeter. Now solve this one. 7 5 ja 35, 0.5. Now multiply. 0.5 multiplied by 2, it is 1. 1 is multiplied by 22, you will get only 22. Now 3.5 multiplied by 2, it is 7 plus 10. It means 17. 22 multiplied by 17. So 374. It is 374 centimeter square. The surface area of this solid. इस सॉलिड का सरफेस एरिया आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। तो इस एक्सरसाइज 13.1 में ओवरऑल हमने 2 दिन से सरफेस एरिया ही निकाला है और इससे ये सीखा है कि हम किसी भी सॉलिड में अगर एरिया निकालना चाहते हैं, सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात आना चाहिए कि कौन कौन सा पोर्शन हम टच कर सकते हैं। तो जो पोर्शन हम टच करते हैं उनका एरिया हम लोग ऐड कर देते हैं, जो एरिया हम लोग टच नहीं करते उनको हम लोग ऐड ही नहीं करते, उनको हम लोग या ऐड हो जाता है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये वाला रीजन ऐड नहीं किया क्योंकि इसको तो हम लोग टच ही नहीं कर सकते क्योंकि स्कूप आउट काट के निकाल लिया गया पहले। सिमिलरली ये एरिया भी हम टच नहीं कर सकते तो इसको भी हमने ऐड नहीं किया, सिर्फ इनके वॉल को ऐड किया, इधर से इनके वॉल को ऐड किया, तो हमारा काम बन। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूम। तो हमारे पास एक सरफेस एरिया इन वॉल्यूम में सरफेस एरिया तो हमने निकालना सीख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ द कंबाइंड सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द कंबाइंड सॉलिड। कंबाइंड सॉलिड, जब 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड आपस में कंबाइंड होते हैं तो उनके वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वॉल्यूम मीन्स आपका सिंपल सा सेंस होना चाहिए, अगर किसी भी सॉलिड आपस में ऐड होते हैं तो उनका जो मास होता है वो जनरली इंक्रीज होता है। मास इंक्रीज हुआ इट मीन्स उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर 2 ऑब्जेक्ट आपस में जुड़ रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ही होगा, और अगर इन केस अगर उससे कुछ काट कर हम निकाल लेते हैं तो उस कंडीशन में वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा। वॉल्यूम उसकी कैपेसिटी को शो करता है। कैपेसिटी मीन्स अगर आपके पास कोई भी वेसल्स है तो उस वेसल्स में हम कितने लिक्विड या कितने सॉलिड मटेरियल या कितने भी गैसियस मटेरियल आप उसमें फुलफिल कर सकते हो या भर सकते हो, वो उसकी कैपेसिटी को बताता है या उसके वॉल्यूम को बताता है। वॉल्यूम कैपेसिटी एक ही चीज़ है, हिंदी में इसको आयतन भी बोलते हैं या इसको धारिता भी बोलते हैं। तो कीप इन माइंड, वॉल्यूम जब भी निकालना है तो अगर आपके पास 2 सॉलिड जुड़ रहे हों तो हमेशा उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर आप एक सॉलिड में से कुछ भी मटेरियल से काट के निकाल लेते हो तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया था, एक सिलेंडर था जिससे कॉनिकल कैविटी हमने काट के निकाल लिया, तो इस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब यही अगर मान लो हमारे पास सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर हम एक कोन और लगा देते हैं, तो इस कंडीशन में हमने कोन को इसमें ऐड किया, तो ऐड करने के वजह से इस सॉलिड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इसमें काट के निकाल लिया जिसके वजह से ये वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। इसमें हमने ऐड कर दिया कुछ, इट मीन्स का कैपेसिटी इंक्रीज हो गया, ये जो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इसमें सिंपल सा सेंस होता है।
वॉल्यूम के केस में कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा आपको दिमाग में रखना, वजन बढ़ा वॉल्यूम बढ़ा, वजन कम हुआ वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, सिंपल सी बात है। तो हम लोग देखते हैं, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। तो ये ओके तो कंबाइंड सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए हम पहले एक सिंपल से एक दो क्वेश्चन करते हैं। वॉल्यूम का आपको फार्मूला सिंपली पता ही होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम का सिंपल जो डेफिनेशन होता है वो होता है वॉल्यूम इज बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है। जैसे आप एक क्यूबॉइड ले लो, आपके पास अगर क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड में के बेस में आप देखोगे, बेस में लेंथ और ब्रेथ होता है, तो ये हमारा जो बेस एरिया है ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसको इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो L इंटू बी इंटू एच, तो ये आपका कैलकुलेट हो गया वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। तो आपका एक फार्मूला यहीं पे बन गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, इट इज योर बेस एंड इट इज योर हाइट। तो बेस एरिया को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यही अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में एल बी एच तीनों सेम होता है, दैट्स वाई साइड इंटू साइड इंटू साइड, इट इज साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब, मीन्स उनके एक साइड अगर आपके पास गया हो ना तो उसको उसी साइड से 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो आपका उसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। लेट्स प्रोसीड विद नेक्स्ट वन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप पहले सिलेंडर का स्ट्रक्चर देखो, इसके बेस में क्या होता है, बेस में एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो इसका एरिया जो होगा बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसका जो हाइट है ये हमने h मान लिया। तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर बेस एरिया और हाइट इसका h। तो पाई आर स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर में कितना लिक्विड या मैटर हम इसमें फुलफिल कर सकते हैं वो पाई आर स्क्वायर h से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली आप कोन पे भी थोड़ा ध्यान दें, वॉल्यूम ऑफ कोन, इट इज लाइक दिस कोन, अगेन योर बेस इज पाई आर स्क्वायर और हाइट इज h, बट व्हेन यू कंप्लीट दिस फिगर यू विल सी अ सिलेंडर इज देयर, बट ये सिलेंडर का थर्ड पार्ट होता है, वन पार्ट ये सेकेंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट है। तो हम लोग इसको पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा लेकिन 1/3, एक सिलेंडर का 1/3 भाग होता है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, our next topic is related with sphere and hemisphere. Okay, sphere means आपका फुटबॉल एक एग्जांपल है, इसका रेडियस r दे रखा है, तो इसका अगर आप वॉल्यूम निकालना हो तो 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम इज पाई आर क्यूब। यही अगर आप हेमीस्फीयर ले लो, आधा गोला, तो इसका हाफ कर दो, इसका रेडियस आपके पास r दे रखा है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और एक माइनर सी बात आपको याद रखना है कि जब भी अगर आपको वॉल्यूम निकालने की बात आए तो जब यूनिट आप यूज़ करो, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर यूज़ करते हो, तो यूनिट जो भी हो उसके ऊपर पावर 3 लगाओगे आप लोग। एरिया में पावर 2 लगता है, वॉल्यूम में पावर 3 लगता है, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों उसमें इंक्लूड हो जाता है। दैट्स वाई ये यूनिट क्यूबिक यूनिट होता है। वॉल्यूम इज ऑलवेज क्यूबिक यूनिट, एरिया इज ऑलवेज स्क्वायर यूनिट, ओके, एंड लेंथ या बोलो डिस्टेंस इज ऑलवेज ओनली यूनिट। जो लेंथ होगा, डिस्टेंस होगा, वो यूनिट होगा। तो ये जो वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं
आपको दिमाग में रखने हैं। इसके बेसिस पे आज हम लोग 1 या 2 क्वेश्चन बनाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे, आगे देखते हैं। ओके, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड है जो कि कोन के शेप में है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। कह रहे हैं कि एक सॉलिड है जो कि कोन के शेप में है और ये किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है विद बोथ ऑफ रेडियाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर का दे रखा है। एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस, और कोन का जो हाइट है इट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। मीन्स पाई को पाई ही रहने देना, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 नहीं रखना है, उन कंडीशन में इनका वॉल्यूम निकालना है। तो आप देख सकते हो इसका वॉल्यूम निकालना है और इसका वॉल्यूम निकालना है। दोनों का वॉल्यूम निकाल के आप ऐड कर दोगे तो इस सॉलिड का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हम लोग उसी थ्रू से चलते हैं जैसे हमने अभी देखा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो आपको करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो कोन का वॉल्यूम अभी आपको बताया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। चूंकि दोनों का रेडियस सेम है इसलिए स्मॉल आर दोनों जगह लगा दिया। अब जो कॉमन आ रहा है पहले उसको कॉमन कर लेते हैं। 1/3 दोनों में कॉमन है, पाई भी कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, आर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉमन। नाउ हियर एच प्लस हियर 2r। नाउ पुट द वैल्यू 1/3 pi, r is 1 square, h is also 1 and 2 into r is also 1. It is pi upon 3, it is 1 plus 2, it means pi upon 3 into 3. 3 से 3 cancel हो गया। Your answer is pi centimeter cube. It is volume of this solid. ये इस सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बना के बताया है। आगे के आप ये 5 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। पहले आप इन क्वेश्चंस को बनाओ, सेल्फ प्रैक्टिस करो, और इन केस अगर आप नहीं बना पाते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना काफ़ी है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।